خدا کی خاطر دعوت دیتا ہوں تو یہاں آئیں اور آج کا خوبصورت کلام جو خدا نے بخشا ہے وہ آج ہم تک پہنچانے کو ہے. ہاللیلویا. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بڑے نام میں آپ سب کی سلام. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئے خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں. خدا کے پاک روح کے مطابق کہ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو در حقیقت ہونا کیا چاہیے؟ سیکھنے کی بات آج کے زندہ کلام سے کہ ہونا کیا چاہیے، در حقیقت ہونا کیا چاہیے. سو خداوند کے زندہ اور مقدس کلام یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ تک پڑھیں گے اور خدا کے زندہ کلام کو دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ فرمان الہی جاری کیا تو کن الفاظوں میں کیا. ہاللیلویا. سو خداوند کے زندہ اور مقدس کلام یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب 15ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ میرے ساتھ رہیے گا اور لفظ بلفظ تاکہ آج کا یہ وقت آپ کا اور میرے لیے بابرکت اور مبارک ہے. ہاللیلویا. اگر تم فرمان الہی جو یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. یہ ایک الگ صورت. دوسری صورت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. کب تک تمہارے ساتھ رہے؟ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. پہلی بات کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے حکموں پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے. دوسری بات، وہ مددگار جو میں تمہیں دوں گا وہ ابد تک کیا ہوگا؟ ہمیشہ تک. ہمیشہ تک وہ تمہارے ساتھ ہوگا، الگ نہیں ہوگا، جدا نہیں ہوگا، رات کے پیروں میں الگ نہیں ہوگا، صبح سویرے الگ نہیں ہوگا، شام کے وقت الگ نہیں ہوگا، دوپہر میں الگ نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحہ قدم بقدم آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے آگے چل کر ہم اس بات کو پڑھتے ہیں. یعنی روح حق کون سا مددگار بخشے گا؟ روح حق. اب یہ تیسری بات ہے کہ روح حق ہے کیا چیز؟ روح حق ہے کیا چیز؟ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم کلام پڑھتے ہوئے، کلام جانتے ہوئے، چرچ میں تعلیم دیتے، تعلیم لیتے ہوئے ہمیں لفظ کے وزن کا، اس کے وجود کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ ہے کیا چیز. یہ لفظ بول کر خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. سو روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ تو وہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ پر لگانے سے پکڑ میں آتا ہے. نہ تو وہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ لگانے سے پکڑ میں آتا ہے. روح حق جسے
दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। कि पहली बात तो उसके बारे में जानते ही नहीं है, दूसरी बात उसे देखती नहीं है। तुम उसे जानते हो, हम तो दावेदार हैं, खुदा का पाकरू मेरे साथ है, मुझे खुदा के पाकरू का मजा है, हम तो दावेदार। इसीलिए कलाम गवाही देता है कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। अब जो चीज अंदर होगी वो किसी भी पाक नापाक मकाम पर, पाक नापाक दिल के मना किसी हाल में भी अगर वो अंदर है तो साथ है, अगर वो अंदर है तो साथ है। कलामे अक़दस के मुताबिक क्या हम जो दावेदार हैं, यहां कलाम में मैंने आपके सामने दो बातें शेयर की कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो क्या करोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करो। नंबर 2, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, यानी रूहे हक। अब रूहे हक क्या है? दुनिया उसे नहीं जानती क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता, वो दिखने में नहीं आता। ये सारी बातें ईमान के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो तुम्हारे साथ मना हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है। 3 बातें हैं। अब गौर करेंगे कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, क्या वो तुम्हारे अंदर है। जो चीज अंदर होगी वो राह चलते हुए अलग होगी, वो घर में बैठे हुए अलग होगी, वो दोस्तों में बैठे हुए अलग। मसा तो मेरा दिल, गुर्दा, फेफड़े, कभी ऐसा हुआ कि मैं दोस्तों में बैठा हूं तो फेफड़े अलग हो, क्योंकि अंदर है ना बदन के। कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने घर में हूं, मैं गुनाह में हूं, मैं बदी में हूं, मैं पाकीज़गी में हूं, मैं इबादत में हूं, तो ये गुर्दे, फेफड़े, ये दिल, क्या ये अलग होगा जिससे? तो बात जब हम कहते नहीं मेरा दिल तो नहीं सी करना पे काम कर दे, लेकिन जब दिल नहीं कर रहा था तो क्यों किया? अब एहसास, इसमें एक लफ्ज हमारे सामने आता है, एहसास। क्या कभी राह चलते हुए हमें ये एहसास हुआ है कि रूहुल कुद्दुस मेरे साथ है? रास्ते में चलते हुए या काम करते हुए या गुफ्तगू करते हुए या दोस्तों में बैठे हुए या कोई प्रोग्राम, कोई काम करते हुए, क्या कभी एहसास हुआ है कि रूहुल कुद्दुस मेरे साथ है? एक खादमों की फैमिली थी, बहुत पहले की बात है। कालवन साहब भाई खादम थे, तो छोटे ने जो बड़ा था उसको गुस्से में आकर गाली दे दी। उसी लम्हे जब बात हो रही थी तो उसने सीने पे हाथ मार के कहा कि यहाँ खुदा का पाक रूह है, यहाँ खुदा का, मैं उस पंचायत कह लें, बैठक कह लें, मैं उसमें बैठा हुआ था, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के मैंने बोला, भी थोड़ी देर पहले जब तूने इसको गाली दी थी उस वक्त पाक रूह कहाँ? उस वक्त पाक रूह कहाँ थी? जब थोड़ी देर पहले तूने अपने मुंह से अपने बड़े भाई के लिए गाली बकी, उस वक्त ये जो सीने पे हाथ मारकर तूने कहा है कि पाक रूह, खुदा का पाक रूह यहाँ, तो वो उस वक्त कहाँ था? सो काम करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, कोई भी खुशी या गमी के वक्त में कि रूहुल कुद्दुस मेरे अंदर है, कभी हमें ये एहसास हुआ? एहसास होगा, ख्याल होगा, डर होगा, मोहब्बत होगी, तो उसकी बातों, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। पहली बात कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो
क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। क्या ये तो पहली बात कि हमें इस बात का एहसास होता ही नहीं। मैंने एक मिसाल, और ये हकीकत मिसाल बात, मेरी आंखों के सामने गुजरा हुआ वक्त था, मेरे कानों का सुना हुआ वक्त है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। कलाम अक़दस के मुताबिक क्या हम पाक रूह को इज्जत देते हैं? कितने लोग दावेदार हैं पाक रूह के, तो मुझे खुदा के पाक रूह का मसा मिला हुआ। गौर कीजिएगा, आज मेरे साथ रहिएगा, ताकि आज का कलाम आपके लिए बबरकत और मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम पाक रूह को इज्जत देते हैं, उसका एहतराम करते हैं? जुबान से, अपने उठने बैठने, अपने चलने फिरने से उसे इज्जत देते हैं? अब इसके बरक्स गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। इसके मुतबादिल हम क्या देखते हैं हमारी जिंदगी में? खुदावंद यीशु मसीह का फरमान इलाही कि तुम खुदा के हुक्मों की बजाय आदमियों की बातों को क्या करते हो? तरजीह देते हो। किस तरह? और इसका वाला भी कि माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप, और बाबा जो काम खुदा मना करता है वो माँ बाप भी कहे तो नहीं करना। जिस बात से खुदा रोकता है वो माँ बाप कहे भी तो नहीं शामिल होना। कलामे खुदा किस तरह बाप दादा की बातों को याद करते हैं। कलाम में हुक्म है कि तू मेरे कलाम की शहादतें अपनी औलाद को बताना, तू शरीयत की किताब उसे पढ़ाना। हम अपने बच्चों को उनके बाप दादा की बातें बताते हैं, लेकिन कलाम की बातें नहीं बताते। कलाम की शहादतें शेयर नहीं करते। हालेलुया। कलामे खुदा, हम कोई काम या बात या माहौल जो हमारे बुजुर्गों या हमारे बड़ों को, गौर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, हालेलुया, हमारे बुजुर्गों या हमारे बड़े को पसंद ना हो, हम उसके आने पर बात बदल देते हैं। ये ठीक है कि गलत है, सब ऊंची आवाज में बोलेंगे। बात हम अपने बड़े की इज्जत एहतराम करते हुए जो बात उसे नापसंद है, जो जिससे वो नफरत करता है, वो काम हम बंद कर देते हैं और बात को बदल देते हैं। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। और अगर ऐसा है तो खुदा के पाक रूह का एहतराम कहां? जो लम्हा बलम्हा, वक्तन वक्तन, कदम ब कदम हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर है, उसका एहतराम कहां है? हम बाप दादा की, बड़े की इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, एहतरामन खड़े हो जाते हैं। क्या पाक रूह का एहतराम कहां है? क्या मेरी जिंदगी में खुदा के पाक रूह का एहतराम है? क्या मुझे इस बात का एहसास है कि खुदाए पाक रूह मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे आगे आगे चलने वाला है, मेरी रहनुमाई करने वाला है, मेरे चारों तरफ यीशु नाम के एहसास को कायम करने वाला है, वो मुझे मुसीबतों से, मुश्किलों से निकालने वाला है? क्या ये एहसास करते हैं? जो हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर हर लम्हा, हर वक्त मौजूद है, उसका कितना एहतराम करते हैं? पहले इस बात को शेयर किया गया कि तुम आदमियों की, खुदा के हुक्मों की बजाय आदमियों की बातों को
तरजीह देते हैं। हम अपने बाप दादा, अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों को खुदा के पाक रूह से ज्यादा इज्जत देते हैं। लोग दुआ बंद कर देते हैं, दुआ करते करते रुक जाते हैं। फलाना आ गया, उन्होंने आखेगा ये दुआ जी बैठा ये भगत। हम इन बातों से खौफ सदा एहतरामन अपने उस बड़े, अपने उस बुजुर्ग की वजह से हम कलाम की बातें करते हुए हम बात को बदल देते हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग को इबादत के टाइम के अलावा ये बातें पसंद नहीं हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं जी इबादत के वक्त क्या करो, और आम वक्त है आम वक्त अंगूर। बहुत सारे लोग इस बात को तरजीह देते हैं। हम ऐसा बुजुर्ग, ऐसा बड़ा जब घर पे आता है, हम कलाम की बात सुनते, कलाम सुनते हुए, कलाम पढ़ते हुए हम बाइबल को बंद कर देते हैं, बात को बदल देते हैं, क्योंकि मेरे उस बुजुर्ग को, मेरे उस बड़े को ये पसंद नहीं, ये क्या करते हैं उसका। और जो हमारे अंदर है, जिसे ये सब पसंद है, जो हमारे अंदर है, जो कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा हमारे साथ साथ है, हम उसकी पसंद को नहीं जानते। हम आदमी की बातों को तरजीह देते हैं और पाक रूह के एहतराम को पर से पर्दा रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, कितने लोग हैं वो बता सकते हैं कि पाक रूह है क्या चीज, क्या मर्तबा रखता है। कलाम खुदा में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो बता सकता है कि पाक रूह का क्या मर्तबा, क्या मकाम। अगर कोई जानता है, समझता है। आगे चलेंगे, हम इस बात को जरूर समझना जरूरी ही नहीं समझते। हम इस बात को जानना जरूरी समझते नहीं है कि खुदा का पाक रूह है क्या, उसकी हैसियत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है। जरा सोचें, गौर करें। पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा का पाक रूह आदमी पानियों पर, खुदा का पाक रूह पानियों पर, खुदा के पाक रूह ने बनी इस्राएल को समंदर के अंदर से, ऊपर से नहीं, समंदर के अंदर से गुजार दिया। खुदा का पाक रूह चट्टान बनकर पानी की सहूलत के लिए इस्राएलियों के साथ साथ रहा। खुदा का पाक रूह रात को आग का सतून बनकर इस्राएलियों के आगे आगे चलता रहा। खुदा का पाक रूह बादल की सूरत में इस्राएलियों के सर पर रहा कि सूरज की धूप में ना जलाए, सूरज की धूप ने। खुदा के पाक रूह ने यीशु मसीह को जिंदा किया। मानते हैं इस बात को? आप ईमान रखते हैं कि रूहुल कुद्दुस के वसीला वो जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जिंदा करने वाला शायर लिखता है, आए मेरे साथ गाएंगे। ये वो रूह जिसने यीशु को जलाया, वो ही रूह बाप ने मुझको पिलाया। ये वो रूह, सब मिलकर गाएंगे। मुझको पिलाया, मेरा गमखारी है रूहे मुक़द्दस, मेरा हमराज़ी है रूहे मुक़द्दस। खुदा सबको बैठा आए आज खुदा के हुजूर
اس بات کا اقرار کریں، آج اس بات کا احساس کریں، خدا کا پاک روح میرے ساتھ بلکہ میرے اندر ہے۔ آج اس بات کو اپنی زندگی میں لیں کہ وہ قدم بقدم لمحہ بلمحہ ساری آمد و رفت میں میرے ساتھ ہے۔ آج اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا کا پاک روح جس نے یسوع کو زندہ کیا، وہی پاک روح خدا باپ نے مجھے اور آپ کو پلایا ہے۔ او ہاللویا، ہاللویا۔ اگر وہ پاک روح آپ کے اندر ہے تو اس کے حکموں پر عمل کرنا، اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرنا لازم ہے۔ خداوند آپ سب کو